कि I told you कि ionic precipitation तब आप करते हो जब आपने you mix any two soluble acids, bases or salts. Mix anything, ठीक है? तो एक insoluble ionic compound produce होता है. You use ionic precipitation to produce insoluble salts from soluble reactants. ठीक है? उसकी तो quick recap ये है कि mix anything, mix any two soluble acids, bases or salts, कुछ भी mix कर दो. And I said कि एक insoluble ionic compound might be produced. Not always it can be produced. तो इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं. We did one example. We can do another example. For example, if I mix, let's do another example. So if I mix aluminum nitrate, so aluminum nitrate it's AlNO3. Al plus 3, NO3 minus 1. So I mix aluminum nitrate with, let's say I pick sodium hydroxide. ठीक है, two completely random compounds. और उसमें the condition was कि they must be soluble. तो solubility का rule क्या था? NO3 minus 1. Anything that contains NO3 minus 1, that is soluble. So this is aqueous. Anything that contains group 1, that's also soluble. So this is also aqueous. Both compounds are soluble. That was the condition. So mix any two soluble things. But you had to ensure this thing was important कि no reactions of 1 to 4 हमने पढ़े, none of those reactions happened. तो इसके अंदर क्या है कि there's a nitrate reacting with a नीचे जाके देखो तो it's a nitrate reacting with a hydroxide of bases. तो बेसिस का हमने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा विद नाइट्रेट्स. बेसिस का एसिड्स के साथ पढ़ा है. दैट वाज द ओनली रिएक्शन दैट वी स्टडीड. सो ये रिएक्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं है. सो देयर इज नो रिएक्शन हैपनिंग. बट सिंस दे आर सॉल्युबल, तो इफ यू मिक्स देम इन अ बीकर, तो जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होता है, इट डिसोसिएट्स. आप चम्मच से उसे हिलाओगे तो you stir it and the ions would separate. Aluminum nitrate में कौन से ions हैं? Aluminum nitrate has aluminium ions plus 3 and it has nitrate ions. तो वो सारे dissociate होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है? So the entire water would have dissociated ions. So aluminium ions and nitrate ions are everywhere. अच्छा, उसी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया है. तो सेम थिंग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पानी के अंदर कौन से आयंस? Na+1 and OH -1. ठीक है? So they would dissociate and they would mix with water. So they're also everywhere. So all these ions are swimming around. There are obviously water molecules between them, which are keeping them away from each other. So in beach mein there are lots and lots of water molecules. So they've all mixed in water. Now what would happen is that I told you that these ions would randomly combine with each other and they would form new compounds. A positive ion would get attracted to a negative ion. For example, these two ions, they might attract each other and they might join together. If they join together, what would be formed? Na+1 would attract NO3 -1 and they would form NaNO3. Now NaNO3 is very soluble. So अगर वो आपस में मिल भी जाए ना and they come together and they form a salt, the salt would be highly soluble. तो वो वापस dissolve हो जाएंगे and they would dissociate again. They would mix in water back again. So in this case, no compound would be formed. Because as soon as they form, if they stick together, because they are highly soluble, they're going to mix in water back again. तो आपको कुछ खास चीज कोई product नहीं बनेगा. अच्छा, but what if aluminum ions and hydroxide ions combine? So let's say there's this aluminum ion and there's this hydroxide ions and
they combine, they stick together. ठीक है, बीच में ना ionic bond, there's a force of attraction between them and they join with each other. तो क्या form होगा? Aluminium plus 3 and OH minus 1 are going to form aluminium hydroxide. So they're going to form aluminium hydroxide. But the thing is that aluminium hydroxide, once it's formed, हाइड्रोक्साइड्स की सॉलिबिलिटी देखो तो उसके अंदर सिर्फ ग्रुप 1 और 2 के थोड़े से सॉलेबल है. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ ग्रुप 3 हाइड्रोक्साइड, दैट्स नॉट सॉलेबल. तो अच्छा, वंस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड तो वो वापस डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि व्हाट वुड हैपन इज कि OH आयंस वुड अट्रैक्ट मोर एल्यूमिनियम आयंस, नेगेटिव आयंस वुड अट्रैक्ट एल्यूमिनियम आयंस, और क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा. बिकॉज वंस द क्रिस्टल इज फॉर्म्ड इट्स नॉट गोइंग टू डिसॉल्व बैक. तो पॉजिटिव आयंस वुड अट्रैक्ट नेगेटिव आयंस, तो ये सारे आपस में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे एंड दे वुड स्टार्ट फॉर्मिंग दिस क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. बिकॉज वंस दिस क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, सोडियम नाइट्रेट का भी फॉर्म हो रहा था, लेकिन सोडियम नाइट्रेट वाज वेरी सॉलेबल, सो वो अगर फॉर्म भी होता था वो वापस डिसॉल्व हो जाता था. दीज आर नॉट गोइंग टू डिसॉल्व, तो वो नीचे सेटल डाउन होते जाएंगे and more aluminium and hydroxide ions, they would all start combining with each other. Okay, so all the aluminium, so you're going to get a solid precipitate of aluminium hydroxide, which is insoluble. So aluminium hydroxide precipitate would be formed. तो इस reaction का एक product तो हमें पता लग गया कि अगर आप इन दोनों को mix करोगे, the one thing that's going to be produced is a precipitate of aluminium hydroxide, solid precipitate. अच्छा, पीछे solution में क्या रह जाएगा? Solution में sodium and nitrate ions would be left. But even if they combine, ठीक है, nitrate attracts sodium ions, negative ions attract positive ions. Even if they combine, they're not going to form a crystal. They're not going to form a precipitate क्योंकि they're highly soluble. ग्रुप 1 के कंपाउंड्स तो वापस पानी के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे. ठीक है, तो इवन इफ दे ट्राई टू फॉर्म अ क्रिस्टल एंड दे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अटैच with each other, they're not going to dissolve and they're going to dissolve, they're going to dissolve back in the water. अच्छा खैर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज द प्रेसिपिटेट. अब पीछे क्या रह गया? सोडियम और नाइट्रेट, लेकिन दैट वुड बी इन aqueous state. ये मतलब सोडियम एंड नाइट्रेट आयंस, सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, यानी वो पानी के अंदर डिसोसिएटेड हो गए. सो दैट्स गोइंग टू बी अ रिएक्शन इन दिस केस. ठीक है, साथ क्लियर है? एना क्लियर है? बाकी अहमद, महाद क्लियर है? यस सर. अच्छा, अब ये कि Yes. ये रिएक्शन, चलो ठीक है, ये रिएक्शन हमेशा नहीं होगा. शर्त क्या है? when will this reaction happen? अगर this reaction would only happen if an insoluble precipitate is formed. Otherwise, it's not going to happen. For example, कोई भी दो रैंडम चीजें अगर कंबाइन भी कर लो, हम कोई और चीज कंबाइन कर लेते हैं. लेट्स से अब NaOH के साथ ना, आई एम गोइंग टू कंबाइन लेट्स KCl कंबाइन कर लेते हैं. ठीक है, अगेन टू रैंडम कंपाउंड्स एंड दे नॉट गोइंग टू रिएक्ट, मतलब इनके नॉर्मल रिएक्शंस तो वैसे ही नहीं है. तो इसका देखते हैं, विल आयनिक प्रेसिपिटेशन हैपन, विल यू गेट अ सॉलिड प्रेसिपिटेट और नॉट. तो इसमें कौन से आयंस हैं? आप पहले तो ये देखो कि सॉलेबल है कि नहीं है. तो Na group 1 aqueous, potassium group 1 that's also aqueous. अच्छा, सो टेक अ बीकर, मिक्स द टू. वैसे तो इनका कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि वन ऑफ देम इज अ बेस, हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, बेस का एसिड के साथ रिएक्शन होता है, देयर इज नो एसिड, सो इनका नॉर्मल रिएक्शन तो कोई भी नहीं है. अच्छा, यू बिकॉज दे आर सॉल्युबल, पानी में स्टर किया है, बोथ ऑफ देम दे गॉट मिक्स्ड इन वाटर. NaOH कौन सा आयंस प्रोड्यूस करेगा? Na+1 OH -1. तो और बना लेते हैं Na+1. ठीक है, तो वो क्रिस्टल जो है डिसोसिएट हो गया, ऑल द आयंस हैव स्कैटर्ड इन द वाटर. अच्छा, KCl एट द सेम टाइम, KCl इज K+1, वो भी सॉल्युबल है, Cl-1. ठीक है, अनदर K+1, अनदर Cl-1.
तो ये सारे आयन सब पानी में मिक्स हो गए। अब इनकी कोई भी कॉम्बिनेशन देखो ना, कुछ भी इनसॉल्युबल नहीं बनता। ट्राई एनी कॉम्बिनेशन, ट्राई Na+1, मतलब Na+1 and Cl-1 माइट ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। व्हाट वुड बी फॉर्म्ड? NaCl। NaCl का तो मसला है कि इट्स वेरी सॉल्युबल, क्योंकि ग्रुप 1 है, तो वो तो वापस डिजोल्व हो जाएगा पानी के अंदर। तो इफ NaCl crystal is formed, the crystal would immediately dissolve back and mix with water back again. तब तो कुछ नहीं बना। और क्या बन सकता है? K और OH कंबाइन हो सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की। तो व्हाट वुड बी फॉर्म्ड? KOH वुड बी फॉर्म्ड। लेकिन KOH का क्या मसला है कि KOH ग्रुप 1 है, हाइड्रोक्साइड, सो दैट्स आल्सो वेरी वेरी, इट्स आल्सो वेरी वेरी सॉल्युबल। तो वो भी पानी के अंदर दोबारा मिक्सअप हो जाएगा। तो होपफुली यू आर गेटिंग द आइडिया कि नो मैटर व्हाट कॉम्बिनेशन यू ट्राई, मतलब Na और OH आपस में वापस भी कंबाइन हो सकते हैं, बट दे आर सॉल्युबल, सो वो भी वापस अच्छा वो भी, so this that would be pointless as well. So the thing is कि nothing is forming, मतलब जो भी फॉर्म हो रहा है वो soluble फॉर्म हो रहा है, तो वो तो पानी के अंदर दोबारा मिक्सअप हो रहा है। So you're not getting anything. At the end of the day आपने बस NaOH और KCl को मिक्स कर दिया, no products are formed, ठीक है, you don't get anything. ठीक है, nothing is formed in this case. महाज ये क्लियर है? सिद्रा क्लियर है? Yes. Mahad, are you there? Yes, sir. अच्छा, the other part is कि अच्छा, तो ये अब होपफुली सारों को क्लियर होगा। रिमेंबर दिस, मैं फिर से हिंट कर रहा हूँ कि सॉलिबिलिटी एक तो कीप द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। The compounds that you're mixing, they must be soluble. The ions would scatter in water, और वो ions randomly combine करेंगे, ठीक है, in water. तो if any random combination would result in an insoluble compound, तो फिर वो सॉलिड प्रेसिपिटेट बन के ना इट वुड सेटल डाउन एट द बॉटम, अदरवाइज नहीं। इसका एक देख लेते हैं, जिस लेट मी जस्ट 1 सेकेंड, इसकी आयनिक प्रेसिपिटेशन का ना एक एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं कि अच्छा, सो बस होपफुली कोई अच्छी वीडियो बन जाए। तो ये देख लेते हैं, 1 सेकेंड। So hopefully नजर आ रहा होगा। I'll just quickly forward this. He's mixing lead nitrate, तो यहाँ पे there is lead nitrate, बल्कि इसको use कर लेते हैं। He's mixing lead nitrate with potassium iodide, ये भी हम करते हैं, ठीक है, इसकी इक्वेशन भी बनाते हैं। So there is lead nitrate and there is potassium iodide, दोनों colorless हैं, ठीक है, दोनों soluble हैं। Soluble नजर आ रहा है कि there is no solid over here, there is a solution, both of them are solutions, and he's going to mix them. इसका जो precipitate बनेगा ना, that would be a very beautiful colored substance. तो एक lead nitrate mix किया है, as soon as he adds this potassium iodide, वो एकदम से ना ये this is the yellow precipitate that is formed. इसके अंदर ना solid particles हैं, it's a thick, इसमें solid particles हैं, they're tiny solid particles, ये crystals form हो रहे हैं, and he's going to filter out the crystals. तो ये मडी सा ना एक वो बन गया with tiny crystals.
So it's going to filter those crystals out just to show you. तो ये ऊपर से ना filter out कर रहा है, trying to extract the crystals. तो ये end के अंदर ना you'll see filter paper के अंदर there would be lots and lots of crystals that would be left in the filter paper. One second. Only can't get this. हाँ ये. So the yellow crystals are on the filter paper. अच्छा now अब पता नहीं वीडियो कितनी clearly you were able to see this. ये मैं explain कर दूँ what happened in this video. Sindra, were you able to see the video? No, it just shows a black screen for me. Can you see the board? Yeah, I can see the board. अच्छा चलो फिर ये चलो ठीक है मैं फिर यहाँ पे ना I'll just do it over here. ठीक है बाकियों ने किसी को वीडियो नजर आई थी? Mahad, were you able to see the video? Sir, there was very glitchy. You could just like see moment and then after 10 seconds. अच्छा नहीं ठीक है एक सेकंड I mean I think you should see this video ताकि उसके बाद फिर हम इसके ऊपर ना डिस्कशन कर लें. Just take 2 minutes. ये मैं I'm sending this on Skype. मतलब Skype के ऊपर ना मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ उसका चैट के अंदर. तो सारे अपने एंड में ना वॉच दिस वीडियो ठीक है. कितने मिनट की? आई थिंक इट्स a 5-minute वीडियो ठीक है. इसको I think you should watch it ठीक है. इसको आराम से watch this video. We'll talk after 5 minutes. सारे देखो ये वीडियो. I've sent the link in Skype.
साद है ना कंप्लीट होगी? Yes. ठीक है। बाकी सिद्रा महद, have you watched the video? Yes. ठीक है। Yes. Now we चलो ठीक है। Now we're going to try and understand what happened in the video. ठीक है। What happened in the video was iodic precipitation. कि उसने दो colorless solutions, completely soluble substances, उनको mix किए, and all of a sudden he got a precipitate, a solid, जिस तरह यहाँ पे ऊपर solid crystals बन रहे थे ना, although not this big, वो tiny yellow crystals बन रहे थे, ठीक है, they were very tiny. तो obviously ये मैंने बहुत expand करके बड़ा करके दिखाया है। The actual crystals are very tiny. They could be big, but they usually are very tiny. अच्छा, what's happening is कि, correct me if I'm wrong, उसने, I think he mixed lead nitrate with, he mixed lead nitrate with potassium iodide. So potassium is K+1, K group 1 में, I is group 7, so -1. तो इन दोनों को mix किया. And if you have the solubility table with you, तो उसमें क्या है कि nitrates जो हैं वो सारे के सारे soluble हैं. इसका मतलब है this is aqueous. Potassium group 1 है, potassium is in group 1, so that is also soluble. Group 1 के सारे compound soluble हैं. तो इसका मतलब है कि इसको जैसे ही mix करोगे ना, तो they're going to dissociate. They're all soluble. तो solution के अंदर ना उनके ions scatter कर जाएंगे, ठीक है? They would all mix with water. तो lead nitrate कौन सा ions produce करेगा? Pb2+ और NO3-1. These ions will get scattered in water. ठीक है, वो देख लो वीडियो के अंदर ना, it was a colorless solution. पहले उसने एक colorless solution add किया. Immediately he added the other colorless solution. That's also very soluble. तो उसमें क्या है? K+1 and I-1. तो K+1 and I-1. तो अच्छा, तो ये उसने let's say add किया potassium iodide. Now immediately when he mixed the two colorless completely soluble solutions, when he mixed them, तो एकदम से beaker में क्या हुआ? A precipitate was formed. A yellow colored precipitate was formed. अच्छा, why was a precipitate formed? अब ये ions सारे ना mix up हो गए. Now think of the combination. Remember, positive ion is attracted to a negative ion. So think of the combinations that could be formed. तो एक तो ये कि potassium जो है, ठीक है, let's say this potassium ion over here, circle कर लेते हैं. Potassium and the nitrate ions, they could attract each other and they could try to form a crystal. तो क्या बनेगा? Potassium ion and nitrate ions, they would form potassium nitrate. लेकिन if you remember the solubility table, group 1 के compounds और nitrate जो होते हैं, they're all very soluble. तो अगर potassium nitrate form हो भी जाएगा तो वो फौरन it's so soluble that it's going to dissolve back into the water और उसके ions दोबारा से scatter हो जाएंगे, ठीक है? So even if the two ions, ठीक है, so solution के अंदर even if these two ions they join up and they try to form a crystal, potassium nitrate is so soluble कि वो ions वापस they will scatter back in water and they will mix with water back again. तो इसका मतलब है कुछ नहीं बना. potassium और nitrate ions अगर मिल भी जाए ना तो it's pointless क्योंकि the compound would be very soluble and you're not going to get anything. No crystals formed. अच्छा, दूसरी की combination देखो, positive और negative ions की. So look at this combination over here. कि these lead ions, they are going to attract, let's say, these negative iodine ions. And let's say all of them, they start attracting each other. Positive lead ion will attract negative ions will attract positive ions. So now they're trying to form a crystal.
ठीक है, so lead ions and iodide ions they're trying to form a crystal. तो Pb2 plus Ni minus 1, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? PbI2 होगा, ठीक है, क्रिस क्रॉस करोगे तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा PbI2. That's the crystal that I've shown over here. So this is the crystal that's forming. इसकी solubility चेक करो कि solubility table के अंदर there was a line which stated कि Cl-1, Br-1, I-1 के जो compounds हैं are all soluble except, solubility table देखो, are soluble except those compounds that contain lead ions or Ag+1. इन दो के अलावा ना any other combination of Cl-1, Br-1 और I-1 is soluble. तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्शन में आ गया, this is not soluble. So this is the solid that is forming. This is the yellow crystals that you see in the video over there. ठीक है, so these are the yellow crystals that you see, क्योंकि एकदम से you'll start seeing these yellow crystals forming. तो अच्छा, so these crystals would form all over the solution and they would settle at the bottom. और इन crystals को ना you can filter them out, जिस तरह वो वीडियो के अंदर था. So yellow crystals would be formed and you can filter them. You can filter them out. But remember कि iodic precipitation is not a must. जैसा पिछला example था ना, उसके अंदर कुछ भी produce नहीं हो रहा था. Nothing insoluble was being produced. जो पिछला एग्जाम्पल मैंने किया था ना, उसके अंदर मिक्स एनी टू आयंस, यानी कोई भी दो आयंस की कॉम्बिनेशन बनाओ, कोई भी क्रिस्टल बनाओ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड इज वेरी वेरी सॉलेबल. तो वो तो दोबारा पानी में मिक्स हो जाएगा. सो इट्स नॉट गोइंग टू फॉर्म अ क्रिस्टल. ठीक है, मोमेंटरली शायद बना लें, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू, वो जो भी क्रिस्टल होगा दैट वुड डिजॉल्व बैक इनटू द सॉल्यूशन. ठीक है, ये क्लियर है? ये एग्जांपल क्लियर है? वीडियो क्लियर है? Ahmed, clear? Anna, Sidra, is this clear? Yes. Yes. ठीक है, Yes. ठीक है. अच्छा, अब करना ये कि हमने तो सॉल्ट प्रिपेयर करनी है ना, तो वो जो लैब के अंदर जो अभी हमने वीडियो के अंदर मेथड देखा था, दैट इज द मेथड कि अगर आपको ये क्रिस्टल्स चाहिए तो यू वांट टू एक्सट्रैक्ट दीज क्रिस्टल्स. ये सॉल्ट बनानी थी ना, मतलब ये क्रिस्टल्स बनाने थे, तो इसको क्या करना है? सिंपली फिल्टर इट आउट. मतलब सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, तो सिंपली जस्ट पिक देम अप. अगर तो बहुत बड़े हैं तो वैसे ही उठा लो, अगर छोटे जिस तरह वो वीडियो के अंदर था, टाइनी क्रिस्टल्स, ठीक है, सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन, तो यू हैव टू फिल्टर देम आउट एंड दैट इज हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर अ सॉल्ट. अच्छा, इसका इस पूरे मेथड का रिवर्स मेथड मैं बता देता हूँ कि दिस इज द ओनली मेथड, दिस इज द मेथड दैट इज यूज्ड, यानी बाकी इक्वेशंस भूल जाओ. दिस इज द मेथड फॉर प्रिपेयरिंग insoluble salts. But insoluble salts are not going to be prepared in any other way. So how are you going to do that? So for example, you want to prepare an insoluble salt, like कोई भी insoluble compound उठा लो. Let's say you want to तो अब मैं रिवर्स पे जा रहा हूँ. जैसा हम, वो याद है हम इक्वेशंस में भी यही कर रहे थे कि जब सॉल्ट प्रिपरेशन की बारी आ रही थी तो आई टोल्ड यू कि लेट्स से यू वांटेड टू मेक AlCl3, किस तरह बनाओगे? तो हम रिएक्शंस सोचते थे कि एसिड कौन सा यूज़ करेंगे, वी शुड यूज HCl. मेटल कौन सा यूज़ करना चाहिए, Al यूज़ करना. मेटल प्लस एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस H2, ठीक है. तो हम रिवर्स पे कर रहे थे, तो इधर भी हम रिवर्स पे करेंगे. तो सॉल्ट का नाम उससे पहले दिया हुआ होगा, ठीक है, इट वुड ऑलरेडी बी प्रोवाइडेड टू यू. तो let's say the salt is magnesium carbonate. All carbonates are insoluble. वो solubility table देखो, all carbonates are insoluble except group 1 के. group 1 के soluble है, group 1 की हर चीज़ soluble है.
तो दिस वन इज इनसॉल्युबल, सॉलिड है, आई वांट टू मेक दिस सॉल्ट। तो मैंने आयनिक प्रेसिपिटेशन में क्या कहा था कि आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी इनसॉल्युबल। बनाओगे किससे? बनाओगे बाय मिक्सिंग टू सॉल्युबल थिंग्स, ठीक है। सो यू हैव अ सॉल्युबल, यानी आई एम डूइंग द सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग, but in reverse. So you'll have a soluble reactant 1 and a soluble reactant 2. अच्छा, so what would those soluble reactants be? अब काम बड़ा आसान है, ठीक है, it's very easy. मैग्नीशियम और कार्बोनेट है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना है। तो think of it this way कि आपने दो रिएक्टेंट्स को मिक्स करना है। एक रिएक्टेंट जो होना चाहिए that should be soluble and that should bring in the magnesium ions. The other reactant should bring in the carbonate ions. ठीक है, जब वो सोल्यूशन के अंदर जाएंगे, दोनों रिएक्टेंट्स को आप मिक्स करोगे तो these two ions would get together and they would form this insoluble salt. अब मैग्नीशियम आयंस अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना, there has to be another negative ion with it. तो soluble reactant number 2, वो कौन सा आप बीच में मिक्स करोगे? रिमेंबर सॉल्युबल कौन से होते हैं? नाइट्रेट्स आर ऑल सॉल्युबल। तो आसान काम है, मेक इट अ नाइट्रेट बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। सॉल्युबल रिएक्टेंट नंबर 2, think of a positive ion that is going to make think of a soluble compound. Group 1 के सारे compound soluble होते हैं, तो think of sodium carbonate. Now this could have been anything, ठीक है। मैग्नीशियम का सोचो, क्या क्या चीज़ें सॉल्युबल है? मैग्नीशियम सल्फेट भी सॉल्युबल है एज लॉन्ग एज देयर इज मैग्नीशियम प्रेजेंट। अच्छा, और कौन सा कंपाउंड मैग्नीशियम का सॉल्युबल हो सकता है? इट कुड बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, Mg2+ और Cl-1, दैट्स आल्सो सॉल्युबल। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ चॉइसेस। इसी तरह कार्बोनेट्स बहुत सारे सॉल्युबल हो सकते हैं। इट कुड बी अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम की सारी चीज़ें सॉल्युबल हैं, NH4+1 CO3-2। इट कुड बी पोटेशियम कार्बोनेट, ग्रुप 1 के जितने भी कार्बोनेट्स हैं they're all soluble. So you have plenty of choices. The only condition is कि अगर आपने एक insoluble salt प्रोड्यूस करनी है, you're going to choose two reactants. एक से कौन सा आयन आना चाहिए? कार्बोनेट का आयन। और दूसरे से कौन सा आयन आना चाहिए? मैग्नीशियम का आयन, ठीक है। और कंपाउंड आप खुद ही बना लो, जो भी कंपाउंड बने, बट द कंडीशन इज दे मस्ट बी सॉल्युबल। तो ये बाकी लोगों को तो मैं इनको तो इग्नोर करते हैं, ठीक है। इस पार्ट को लेट्स इग्नोर, ऊपर वाले वालों को ही देख लेते हैं, इसको बल्कि रब ऑफ कर देते हैं। अच्छा, इसको हम रब ऑफ कर लेते हैं। Now I'm going to mix these salts, और ये दोनों soluble हैं। तो take a beaker, अब when you mix magnesium and nitrate ions in solution because it's soluble, तो वो सारे ions mix up हो जाएंगे solution के अंदर। If you mix sodium ions and sodium carbonate in solution, तो that's also soluble. The sodium ions and carbonate ions are going to mix. अब इनकी कॉम्बिनेशंस देखो कि कौन सी, मतलब यू हैव 4 आयंस इन सॉल्यूशन नाउ, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकती हैं? या तो Na और NO3 कंबाइन कर जाए, Na और NO3 कंबाइन कर जाए पॉइंटलेस, क्योंकि द कंपाउंड इज सॉल्युबल। सो even if they attract each other and they combine, so because they're very soluble, the crystal would break and they would dissociate back into water. They would mix with water. अच्छा, on the other hand, तो ये बनाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, we'll rub this off. अच्छा, what if magnesium ions go and combine with carbonate ions? Carbonate के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो क्या बनेगा? MgCO3. Now MgCO3 is insoluble, solid होता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में मिलकर ना they would start forming a crystal. बाकी जो होंगे ना वो solution में एग्जिस्ट करेंगे। तो आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट इज बीइंग फॉर्म्ड, जो कि सॉलिड क्रिस्टल है, एंड व्हाट्स लेफ्ट इन द सॉल्यूशन? सोडियम एंड नाइट्रेट आयंस, दे आर लेफ्ट इन सॉल्यूशन।
तो उनको भी लिख लो कि सोडियम और नाइट्रेट आयंस जो है ना वो एक्वस स्टेट के अंदर दे आर रोमिंग अराउंड इन द सॉल्यूशन, दे आर स्टिल मिक्स्ड इन सॉल्यूशन। तो ये आपकी ना पूरी इक्वेशन बन गई है। तो आई रिपीट कि whenever somebody is going to give you an insoluble salt or and they tell you to prepare it, so think of two compounds which must be soluble. एक से magnesium ion आना चाहिए and the other one should provide the carbonate ion. So I thought of magnesium nitrate and I thought of sodium carbonate. और दोनों को mix कर दो, eventually magnesium ions and carbonate ions would get together to form the salt. ऐसा explanation क्या होगी? क्योंकि 3-4 मार्क का एक वो क्वेश्चन आ जाएगा। So what would be the explanation? Explanation ये होगी कि फर्स्ट लाइन जैसा टाइट्रेशन की एक्सप्लेनेशन थी इसकी भी लिखनी है। फर्स्ट लाइन वुड बी के मिक्स aqueous magnesium nitrate, वो उस पे वीडियो में भी देखा था उसने कोई स्पेशल बस वैसे ही उठा के मिक्स कर दिया था। तो मिक्स मैग्नीशियम नाइट्रेट aqueous एंड aqueous दूसरा कौन सा रिएक्टेंट है सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऐसे दोनों को मिक्स कर दिया, इमीडिएटली प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो जो वीडियो में क्या था, फिल्टर आउट द प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट दैट इज फॉर्म्ड। तो इमीडिएटली प्रेसिपिटेट फॉर्म होना शुरू हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट का। अच्छा, नाउ द प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल, so you can wash the precipitate with distilled water क्योंकि उससे पानी में डिजोल्व तो होना नहीं है, इट्स इनसॉल्युबल। तो आप उसको ना वो जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे ना, यू कैन इजीली वॉश देम ताकि इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाए। और फिर ड्राई क्रिस्टलाइजेशन करने की तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो पहली क्रिस्टल्स बने हुए हैं। द लास्ट स्टेप वुड बी ड्राई क्रिस्टल्स इन सनलाइट। तो वो जो फिल्टर पेपर के ऊपर क्रिस्टल्स थे ना, उनको उसी के ऊपर ना पानी से वॉश कर लो डिस्टिल्ड वाटर से, उसी के ऊपर ना जस्ट ड्राई देम, ड्राई क्रिस्टल्स इन सनलाइट बाय कीपिंग द क्रिस्टल्स इन सनलाइट। ठीक है, दैट्स योर एंटायर 4 मार्क एक्सप्लेनेशन जिसमें इंक्लूडिंग द इक्वेशन। यू हैव टू फिगर आउट द इक्वेशन एज वेल, ठीक है। तो आई रिपीट, इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करनी है, जस्ट थिंक ऑफ 2 सॉल्युबल रिएक्टेंट्स जिनको आपने मिक्स करना है। इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए थिंक ऑफ अ रिएक्टेंट व्हिच हैज मैग्नीशियम इन इट, और एंड थिंक ऑफ द अदर रिएक्टेंट व्हिच शुड हैव अ कार्बोनेट इन इट, एंड द कंडीशन इज दे मस्ट बी सॉल्युबल रिएक्टेंट्स। तो एक काम ये करो, ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन। द टास्क इज to produce insoluble compound, calcium phosphate, PO4 twice होगा, it's insoluble। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है पूरी। इक्वेशन सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो। Everyone try this, कैल्शियम फॉस्फेट को प्रोड्यूस करना है यूजिंग आयोनिक precipitation। Try and think of an equation in 5 minutes. Remember, calcium phosphate produce करना है, that's the insoluble salt। तो उसके लिए soluble reactants figure out करो, कौन से 2 soluble reactants को mix करोगे।
किसी ने कंप्लीट कर लिया, सेंड किया? Siddha, are you done with this? No. अहमद, आपने किया? Saad, Anna, are you done? सर एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, आपकी इक्वेशन सही है। और बस मिक्स करो, एक्वस एक्वस, ठीक है। फिल्टर वॉश डिस्टिल वाटर, ठीक है। एना आपका ठीक है। बाकी मैं देख लेता हूँ। साथ एक इशू है कि कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया है। साथ ही आपका है ना कैल्शियम कार्बोनेट वाला? यस सर। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? उसके नीचे एक्वस लिखा हुआ है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है। कार्बोनेट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, सिर्फ ग्रुप 1 के सॉल्युबल होते हैं। सर एक मिनट में चेंज करके। ठीक है, बाकी ठीक है। एक चीज याद रख लो कि ग्रुप 1 की क्योंकि दो सॉल्युबल चीजें ढूंढनी है ना, तो ग्रुप 1 की सारी चीजें सॉल्युबल होती हैं और नाइट्रेट सारे सॉल्युबल होते हैं। तो वो आसान काम है। जो भी चीज बनानी है ना, या तो नाइट्रेट बना दो या ग्रुप 1 का बना दो, ठीक है उसे। ठीक है महद, ये किसका है? अहमद का।
Sidra Mahat, send your work as well. ये बस होमवर्क लिख लो, सेम क्वेश्चन होगा कैल्शियम फॉस्फेट के लिए जो किया ना, डू द सेम फॉर लेट्स से 2-3 और क्वेश्चंस है. The question is, I want to make aluminum hydroxide crystals, insoluble compound है, ठीक है. The next question is, I want to make और कौन सा insoluble है, कोई magnesium, one second, magnesium sulfate, barium sulfate, insoluble, and another one I want to make AgCl, which is also insoluble. तो ये insoluble compound जो है ये बनाने 3 of them सेम तरीके से, ठीक है. अच्छा, बाकी अपने वो भेज दो आंसर्स. सिद्धा किस पार्ट पे आप? I'm sending it. ठीक है. चलिए ठीक है, वी कैन आई विल वेट फॉर योर आंसर्स. तो मैं यहाँ से ना डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है. चलिए, और ये 3 काम ना ये मुझे सबमिट करने हैं. चलिए, ओके, टेक केयर, अल्लाह.